morning students. So today we'll start with the chapter 2nd of NCERT, that is inverse trigonometric function. So these three words are different: inverse, then trigonometry, then function. Likewise it is there. So we studied in first chapter in relation function about function. What do you mean by function? How we can find out the inverse of a function. In this chapter, how we can find out the inverse of trigonometry. So first we will see, we will recall whatever we studied in 11th class, in 11th plus in 12th class. In function we studied types of function, composition of function, invertible function. And in 11th class we studied about trigonometric. What do you mean by trigonometric function? So let us recall something from 11th as well as from 12th class. So what do you mean by function? Function होता क्या है? Function होता है जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और उसके रिगार्ड में हमें y में कोई वैल्यू मिलती है। ऐसा भी होता है कि x की दो वैल्यू पुट करें जिसके रिगार्ड में y की एक वैल्यू आ जाए, और उसे हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। जब दो एलिमेंट्स की इमेज एक एलिमेंट बनती है तो वो फंक्शन क्या होता है? ग्रेटर देन का साइन हो या ऐसे, तो वो फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। दिस ऑलरेडी आई टॉट यू इन फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड, अगर हम x रखें और उसके रिगार्डिंग हमें दो वैल्यू y की मिल जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये फंक्शन होगा ही नहीं। x को रखने पे y की दो वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ, x की दो वैल्यू पे y की एक वैल्यू बन सकती है। दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन एंड दिस इज नॉट ए फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन y एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? कोई भी फंक्शन इनवर्स कब बनाता है? व्हेन द फंक्शन इज 1 1 and on 2, then it is invertible, or we can find out the value of that inverse of that function. So what is the definition? For every 1 1 on 2 or f a to b, function f from a to b, there exists a g कहां से उल्टा, b to a. For every 1 1 on 2 f a to b, there exists a g which is also 1 1 and on 2. For g of y is equal to x, yeah, you can write such that g of y is equal to x if and only if f of x is equal to y. This is the definition of invertible function or inverse of a function. For every 1 on 2, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 on 2 है तो हमें एक ऐसा g मिलेगा जो इनवर्स बनाएगा। वो भी क्या होगा? 1 1 on 2 होगा, such that g of y अगर x के इक्वल है वो कब होगा? if and only f of x is equal to y. g is called the inverse of f and it is denoted by f of inverse. Therefore, already I taught you about gof of x is equal to x and fog of y is equal to y, or in place of g you can write f inverse of f is equal to x and f of f inverse y is equal to y. So this is the definition of
invertible function or to find out the inverse of a function. Now come to trigonometry. So how many trigonometric ratio we have? We have 6 trigonometric ratio: sine, cos, tan, cosecant, secant and cot. So 6 trigonometric functions are there, and already we studied in the 11th class about this trigonometric functions, trigonometric ratio. Now, what is the domain and range of these trigonometric ratios? Or you can say that trigonometric function also. So let us see. See here. For sine, domain is R. R stands for real domain. And this is range. Cos, real number, and range is closed interval minus 1 to 1. For tan, what do you mean tan? Domain is R minus, because tan होता क्या है? Tan theta is equal to sin theta upon cos theta. तो अगर cos 0 हो जाता है तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, सभी रियल नंबर में से कौन सी वैल्यूज माइनस कर लेते हैं? पाई बाय 2. cos पाई बाय 2 पे क्या होता है? 0. यहाँ पे 0 रखा तो पाई बाय 2 आया, 1 रखा तो 3 पाई बाय 2 आया, 2 रखा तो 5 पाई बाय 2. तो जितनी भी वैल्यू ऐसी आएंगी जिन पे ये 0 बनता है रियल नंबर में से, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो दिस इज द डोमेन ऑफ tan. रेंज क्या है? रियल नंबर. सेम फॉर कॉट, r माइनस कॉट होता है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब sin थीटा जब 0 होगा then this function will become not defined. So इसलिए हमने क्या किया? sin थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री पर, पाई पर. सो लाइकवाइज जैसे से आप इंटीजर की वैल्यू यहाँ पुट करते रहेंगे तो जो भी वैल्यू ये बनेगी, जैसे 0 बनेगा, पाई बनेगा, 2 पाई बनेगा, 3 पाई बनेगा, माइनस पाई बनेगा, माइनस 2 पाई, तो वो रियल नंबर से क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, जो इसकी डोमेन में आएगा. एंड व्हाट इज द रेंज? दैट इज रियल नंबर. सेकेंड होता है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. तो जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा कब 0 होता है? कॉस थीटा जो इसमें जो भी वैल्यू थीटा की जो भी एंगल पुट हो, जो इसको 0 बनाए, यानी कि नॉट डिफाइंड बना देगा. इट मींस हम क्या करेंगे? अगेन रियल नंबर में से हमने क्या वैल्यू माइनस कर दी? जहां कॉस थीटा 0 बनता था, जैसे पाई बाय 2 पे कॉस थीटा 0 बनता था. फिर ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप इंटीजर n की जगह इंटीजर पुट करेंगे, you will get that set of the elements which will make this cos 0. therefore वो हमने r में से क्या कर दिए? माइनस कर दिए. रेंज है, जो इसकी रेंज होगी वो r माइनस 1 to 1. रियल में से इसको माइनस कर देंगे, that will become the range. सेम फॉर कोसिकेंट. कोसिकेंट में भी कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा. तो जब ये 0 बनाएगा, जिस वैल्यू पे ये 0 बनाएगा, we will remove that angle from real number, so that will become the domain, and this is the range of the trigonometric function. अब ये रेंज, लिसन वेरी केयरफुली, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो थे उनकी डोमेन और रेंज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनकी डोमेन और रेंज बनाई. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स. क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन. सो first of all, sine is not bijective function, and the function who is not bijective, we can't find the inverse. So first we will make sine bijective. And how we will make it bijective? To restrict its domain and codomain. But why it is not bijective? Because it is not 1-1. Why it is not 1-1?
लेट अस सी f of x is equal to sin x और f is what is f है कहां से कहां तक, रियल टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. It means domain of sin is real and range of sin is -1 to 1. See here, why it is not 1 1? If a function is not 1 1, so it is not invertible also. But why it is not 1 1? Just see properly here. At 0, the value of sin is 0. At pi, the value of sin is 0. But 0 is not equal to pi. Let us take the example. What is the condition of 1 1? F of x1 is equal to f of x2. Here f of 0 is equal to 0, f of pi is equal to 0, but 0 is not equal to pi. The condition is same, f of x1 is equal to f of x2, and if x1 is not equal to x2, it means it is not 1. Same in that function is called minimal function. So this is minimal क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे इसकी डोमेन में जिसकी जो इमेज बनेगी किसमें, को डोमेन में, वो सेम बनेगी. जैसे आप चेक कर सकते हैं, इस पे सेम बनेगी, इस पे सेम बनेगी, इस पे ऐसे. यहां पे भी देख सकते हैं ये एलिमेंट और ये, इस पे जो इमेज बनेगी वो सेम बनेगी, जो वैल्यू होगी इसकी वो सेम होगी. बट ये जो नंबर होगा वो और ये जो नंबर होगा ये दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1. सो नाउ वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एंड कोडोमेन एंड वी विल मेक इट 1 1 onto bijective, and then we will find out the inverse of trigonometric function, all the trigonometric functions. So how we can restrict? We will find the principal value. अब वो कैसे निकाली जा सकती है? See here very carefully. यहाँ here also pi by 2. इसको मैं मिटा देता हूं. See here, अब इस लॉट में ध्यान से देखिए, इस लॉट में -π/2 से π/2 या तो ग्राफ इंक्रीज करे या ग्राफ डिक्रीज करे. जब ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो वहां पे फंक्शन क्या बनाता है 1. अब जैसे यहां से है और यहां कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, यानी आप जो भी वैल्यू x की पुट करेंगे y की यूनिक वैल्यू मिलेगी, यानी रिपीटेशन नहीं होगा. जैसे क्या होता था, हम x की दो वैल्यू पुट करते थे, जैसे हमने यहां पुट की और इसकी जो इमेज आती थी वो सेम आती थी. बट अब क्या होगा, हम जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे उसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, यूनिक आएगी, यानी कि डिफरेंट. फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x we will get different image या unique image in y. So we will restrict the domain and codomain. So इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे fx क्या है, sin x है and it is not bijective. मैंने आपको बताई है ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं x के जिसपे सेम इमेज बना रहा है वो y में, तो हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, लेट जो रेंज है इसकी f, रेंज को हमने रिस्ट्रिक्ट किया कहां से, जहां से ये इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये कैसे -π/2 से π/2 हो सकता है. फिर अगेन यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, सेम हेयर आल्सो फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो ये सारे जो है वो इसकी अदर ब्रांचेस ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है. तो इसकी मेन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो रहेगी, हम इसको मैं लिखता हूं -π/2 to π/2 से लेके -1 to 1.
अब इसमें अगर आप एफ ऑफ एक्स को चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, और अगर एफ इज 1 1 ऑन टू, सो इट इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो जब ये इनवर्स बनेगा, तो इनवर्स बनेगा तो क्या होता है, अगर f की डोमेन ये है और रेंज ये है, तो व्हेन इफ इट इज इन्वर्टिबल, तो जो नया इनवर्स फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो साइन इनवर्स की जो डोमेन बनेगी वो बन जाएगी -1 to 1, और जो को डोमेन या रेंज बनेगी वो बनेगी -π/2 to π/2। नाउ कुछ चीजें आप ध्यान रखें, नोट। सबसे पहले साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, ये पहला। सेकेंड, साइन इनवर्स x का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन -2x। तीसरा, साइन इनवर्स x is not equal to sin inverse x is not equal to sin square x का inverse. So these all are not equal, they are different. So pause the video to note down and see the fact properly. This is very important according to the paper point of view. Sometimes they can ask you, show that the inverse, how we can find out the inverse of a sine function. So like this you have to solve and you have to draw the graph also. Now अब साइन का अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, इनवर्स का, ये तो साइन का ग्राफ बना है, अगर मुझे इनवर्स का ग्राफ बनाना हो तो आई विल टेल यू कैसे। एक्स एक्सिस वही रहा, वाई एक्सिस वही रहा, सिर्फ फर्क क्या पड़ गया, आप हमने ये लिखा था, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है व्हेन वी आर मेकिंग द ग्राफ ऑफ साइन x। तो ये जो वैल्यू है ये y एक्सिस पे है, अगर हम यानी किसकी वैल्यू y एक्सिस पे है, रेंज y एक्सिस पे बना रहे हैं और डोमेन किस पे बना रहे हैं, x एक्सिस पर। अब यहां फिर से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वी विल मेक लाइक दिस -1 1, और यहां पे जो आ जाएंगे, यहां पे हमारे एंगल आ जाएंगे π/2, उसके बाद पाई लाइकवाइज इट विल कम। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन कि 0 पे जो वैल्यू होती है कॉस की वो कितनी होती है, 1 होती है, π/2 पे 0, अगेन पाई पे कितनी होती है, -1, ये -1, और ऐसे ही लाइकवाइज। सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू cos x, f of x इज इक्वल टू cos x। नाउ और इसकी जो फंक्शन होता है कहां से कहां तक होता है, ये अगेन -1 टू रियल टू, जो इसकी डोमेन होती है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो कहां से होती है, रियल, और कहां तक चलती है, -1 टू 1, जो इसकी रेंज होती है वो -1 से 1 चलती है। अब नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगेन कॉस है, इट इज नॉट 1 फंक्शन, क्यों, क्योंकि यू कैन चेक हियर, सी हियर 0 पे, देन 0 पे जो वैल्यू है 1, वही 3π/2 पे भी आएगी, या जो π/2 पे वैल्यू है, यहाँ π/2 पे क्या वैल्यू है, 0, 3π/2 पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इसकी, अगेन इट विल बिकम 0। सो लाइकवाइज ये भी क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, बिकॉज फॉर x
x1, x1, x2 या और x3, x के कई एलिमेंट पे जो इसकी इमेज बनेगी वो एक सिंगल इमेज बनेगी। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक सिंगल इमेज बनेगी। तो ये वन फंक्शन नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अगेन वी विल रिस्ट्रिक्ट इट्स रेंज एंड डोमेन और you can say that codomain. We will restrict to make it. So here f of x is not bijective. Now I think you understood why it is not bijective. You can prove also. आप प्रूव भी कर सकते हैं कि जो cos की वैल्यू पाई बाय 2 पे है, it's पाई बाय 2 0, 3 पाई बाय 2 0. So f of x1 is equal to f of x2 is equal to 0. But f of x1 कौन सा, f of पाई बाय 2 इज इक्वल टू f of 3 पाई बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। बट पाई बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाय 2, सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ऐसे वी कैन टेक द एग्जांपल, वी कैन प्रूव हियर इट इज नॉट वन फंक्शन, सो f of x is not bijective. Now what to do? We will again restrict its domain to make it 1 1. So how we can restrict? See here, मैंने अभी आपको बताया था जहां से ग्राफ इंक्रीज या डिक्रीज करे, जैसे ये देखो, ये ग्राफ यहां पे आके यहां तक डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां से फिर उठ रहा है, इसका मतलब ये और ये विल टेक फ्रॉम 0 to पाई। 0 पे वैल्यू 1 है और ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कहां तक, -1 तक, यहां पे आ गया। सो इसमें जो ये दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। और अदर प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या होंगी, हम बना सकते हैं यहां से पाई से, जहां पे ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, अगेन फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी -पाई से 0। लाइकवाइज यू कैन मेक अदर प्रिंसिपल ब्रांचेस आल्सो, बट हमें एक प्रॉपर जो यहाँ पे डोमेन बनानी होती है या रेंज बनानी होती है या डोमेन या कोडोमेन टू मेक इट 1 1, वो हम मेन प्रिंसिपल ब्रांच को देखते हैं। सो f of x इज नॉट बाइजेक्टिव। तो अगर f of x बाइजेक्टिव नहीं है तो ये कब होगा, when f of x is equal to cos x, और ये कब होगा, जब इसकी रेंज जो होगी वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई आ जाएगी। नाउ इन दिस 0 to पाई, अब आप चेक कर सकते हैं 0 से ये पाई की वैल्यू, 0 से पाई के बीच में यहां से कोई भी ग्राफ डाउन आ रहा है, कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, x के किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लें, 2 वैल्यू y की नहीं बनेगी। 0 पे चेक कर लें, फिर यहां पे चेक कर लें, यहां पे चेक कर लें, इन बिटवीन चेक कर लें, it will not make 2 values. So it is now f is 1 1, and on to तो ये है ही है, क्योंकि y के हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट कम से कम एक इमेज x में बनी रही है। सो f is 1 1 and on to, क्योंकि जितने नंबर्स की इमेज y में बनेगी, y के उतने ही नंबर की इमेज जो है वो x में भी बन रही है, प्री इमेज बन रही है। सो f is 1 and on to, therefore f inverse, f is invertible, f is invertible। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, y is equal to cos x, it implies x is equal to cos inverse y, or we can write y is equal to cos inverse x। अब इन्वर्स की cos की जो रहेगी, cos इन्वर्स की, अब f की थी, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अब ये इन्वर्स यानी कि इन्वर्टिबल हो गया, उल्टा हो गया, तो अब ये डोमेन का काम करेगी और ये रेंज का काम करेगी इन्वर्स फंक्शन के लिए। सो -1 to 1 और ये आ गया 0 to 1। सो नाउ वी फाउंड द इन्वर्स ऑफ cos function, but when, how? First we restricted its domain and range, then we found the inverse of cos।
अगेन कुछ चीजें नोट डाउन समथिंग सेम. Cos inverse x is not equal to 1 upon cos x. Second, cos inverse x का square is not equal to cos 2. Likewise, so these things are not equal. Pause the video to note down. Now, come to again we will find the inverse of tangent function. Tan or tangent function I written here. So this is the graph of tan x. See here, why we made this kind of graph? क्योंकि इसकी वैल्यू कभी एंड नहीं थी. Why? See here, f of x, sorry, tan x जो होता है that is equal to sin x upon cos x. अब इसकी जो डोमेन और रेंज होती है किसकी, tan की, वो क्या होती है, रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिए क्या, हमने माइनस किया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z. से कहां तक ये जो वैल्यू है ये क्यों माइनस की गई इसकी डोमेन से, इसकी डोमेन से ये वैल्यू इसलिए माइनस की गई, ध्यान से सुने आप, इसकी डोमेन से ये वैल्यू इसलिए माइनस की गई क्योंकि जैसे ही मैं cos 0 पुट करूंगा ये फंक्शन, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90, हाँ जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू 90 पुट करूंगा ये फंक्शन बन जाएगा नॉट डिफाइंड. इसलिए हमने क्या किया, जो भी वैल्यू जहां पे cos नीचे डिनोमिनेटर में 0 बना सकता है उसको हमने हटा दिया, वो सारी वैल्यू हटा दी. Here if I will put an integer है, 0 पुट करूंगा तो पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 में ये वैल्यू 0 हो सकती है तो उसको रिमूव कर दिया. सेकंड में 1 पुट करूंगा तो 3 पाई बाय 2, अगेन cos 3 पाई बाय 2 0 होता है तो उसको भी रिमूव कर दिया ताकि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ना बन सके. दूसरा, जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, वो रियल नंबर. जो इसकी रेंज होगी वो रियल नंबर होगी. रेंज कौन सी होती है, ये y, ये जो y है. अब यहां से अगर हमने शुरू किया है कोई भी नंबर तो ये ध्यान से देखें आप, ये ऐसा नहीं कि लाइन सीधी है, नहीं, ये लाइन ऐसे आ रही है धीरे धीरे, ये धीरे धीरे चेंज हो रही है, यानी वैल्यूज चेंज हो रही है. बट अगेन इफ यू विल सी कि ये भी 1 फंक्शन नहीं है. 1 फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी जगह जो 10 की वैल्यू है वो रिपीट करती है. 10 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जैसे ये है, हम क्या लिखते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट. यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टैन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, अगर मैं टैन 45 और टैन 225 लिखता हूं, टैन 45 और टैन 225, तो दोनों की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1. यानी f of x1 इज इक्वल टू f of x2, वो कितना आ गया, 1. बट जो x1 है वो x2 के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन. सो व्हाट टू डू, वी विल रिस्ट्रिक्ट अगेन, we will restrict their domain and codomain to make it bijective. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f of x is not 1 function. Therefore, it is not bijective. अब ये bijective कैसे होगा? We will restrict its domain. कैसे करेंगे? ये देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है, मैंने कहा था या तो वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है या नीचे से देख रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रही है इस इंटरवल में, अगेन फिर इस इंटरवल, अगेन इस इंटरवल.
तो ये सारे के सारे जो इंटरवल्स बन रहे हैं दे आर द प्रिंसिपल ब्रांचेस। सो इसमें जो मेन प्रिंसिपल ब्रांच हम ले रहे हैं वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ले रहे हैं। रेस्ट वन दीज आर द अदर प्रिंसिपल ब्रांचेस या अदर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan। ठीक है, अब दोबारा से फंक्शंस को हम मूव करते हैं। अब यहां पे f जो इसकी डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। व्हाई इट इज ओपन इंटरवल, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू पाई बाय 2 नीचे पुट होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड बना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। इसलिए हमने क्या किया था, जहां जहां पाई बाय 2 आएगा या माइनस पाई बाय 2 आएगा या जो भी वैल्यू जहां पे ये नॉट डिफाइंड बनेगा विल रिमूव दैट वैल्यू। तो इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया कि वी विल नॉट इंक्लूड दिस वैल्यू से लेके नाउ fx आ गया tan x और f आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टू रियल। अब नाउ दिस इज 1 1 एंड दिस इज on 2, सो f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि इस इंटरवल में इसके बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। देखिए अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कोई भी वैल्यू, किसी के सामने कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो x के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक इमेज ही बनेगी। तो f बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स जो होगा वो हम क्या लिखते हैं, सी y इज इक्वल टू tan x, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जो tan इनवर्स थी वो क्या आ जाएगा, अगेन जो रेंज होगी या ये चेंज हो जाएगी किसमें, डोमेन में, और जो डोमेन होगी वो चेंज हो जाएगी किसमें, रेंज में। सो r कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए टेंजेंट फंक्शन इफ वी रिस्ट्रिक्ट its domain and codomain, so we can find the inverse of all the trigonometric function. So rest of the 3 trigonometric function you have to solve by your own, and if you face any problem then you can write in the comment box. I will again solve and I will tell you, I will explain you properly again. Then next see, if I am writing the inverse of tan is equal to tan inverse, so I can write it like this also, or we can write it arc of tan. This is one is the same thing, arc of tan or tan inverse we can write whether in this form, whether in this form. Now 2.1 exercise, which is very important according to the board point of view. The examination, find the principal value of, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो रेंज में, रेंज को सेटिस्फाई करती है, जो उसकी रेंज के अंदर आती है। सो हाउ टू सॉल्व दिस, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, और जो y है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज। तो साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या थी, वो थी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसको बिलोंग करना है। यानी जो y की वैल्यू है वो इनमें से या इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। सो हाउ टू सॉल्व, साइन को इधर लाते हैं, तो साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो साइन बनाएगा माइनस पाई बाय 2, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस 1/2। साइन में वैल्यू कब होती है, साइन पाई बाय 6 ये होती है। आप जानते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन होता है, साइन माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स। Thus we already studied in class 11. So we can write like this, sin y is equal to sin minus 5. Now you can compare
साइन y साइन माइनस पाई बाय 6 के इक्वल है, दैट इज y किसके इक्वल होगा माइनस पाई बाय 6। और यू कैन चेक क्या माइनस पाई बाय 6 इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये आ रहा है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। So this is the way you can find out the principal value of any of the inverse trigonometric function. Let us take one more example. This one, cos inverse minus 1 by root 2. So let us see. Let y is equal to cos inverse minus 1 by root 2. What is the value of y? y किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो ये होती है, तो y की वैल्यू इसी में आनी चाहिए क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। सो इसको इधर लाते हैं, cos इनवर्स जब इधर आएगा तो ये बनाएगा cos y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। सो cos y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 जो वैल्यू होती है cos में वो 45 डिग्री पे होती है, बट दिस इज माइनस, सो cos माइनस पाई बाय 4। बट ये जो माइनस पाई बाय 4 है ये cos की रेंज में नहीं आ रहा है, ये माइनस 45 डिग्री है। माइनस 45 डिग्री डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू, ये नहीं करती। तो हाउ टू मेक इट, cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इस प्रिंसिपल वैल्यू के अनुसार, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से पाई बाय 2, सेकंड होता है पाई बाय 2 से पाई। तो इस नाउ दिस इज प्रॉब्लम सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1, tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. This also we can solve with the help of principal value, but individual we can find out the principal value and then we will use this sign. Otherwise combine also you can solve it. If you solve this question number 1, then it's very easy to solve this together. See here, tan inverse value of 1 is tan pi by 4 and pi by 4 belongs to the range of tan inverse plus see cos inverse minus 1 by 2 है, तो cos जो होता है, listen very carefully, cos inverse की cos, अभी मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया था कि ये जो cos था, cos inverse जब माइनस में आता है तो ये सेकंड क्वार्टर में होता है, तो सेकंड क्वार्टर में हमें क्या करना है, सिर्फ पाई से माइनस करना है। 1 by 2 जो वैल्यू है वो किस पे होती है, 1 by 2 वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाय 3 पर cos में, तो हमें क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है किससे, पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू उसकी रेंज में आ जाती है, तो माइनस 1 by 2 को हम लिख सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, साइन माइनस पाई बाय 6, तो ये कैंसिल हो जाता है, पाई बाय 4 प्लस सॉरी यहाँ पे कॉस आना चाहिए था, कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस सॉरी माइनस पाई बाय 6। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम, तो एलसीएम विल बिकम 6, सॉरी एक मिनट, एलसीएम 6 नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 12, 4 3 are 12, 3 pi, 3 4 are 12, 8 pi minus 2 pi, तो 11 minus 2, 9 pi upon 12 will be the answer of this question. Pause the video to note down. So you have to solve now full exercise 2.1 and make a notes of this, find out the inverse of all the trigonometric function. 3 I solved, again you have to solve in your copy, and rest of the 3 also you have to do by your own. Or here also you can cut also up to simplest form like this 3 pi upon 4. So you can write this also, you can write this also. So this is the end of
2.1 exercise and introduction of inverse trigonometric function. Tomorrow we will study about the properties of inverse trigonometric function, and 2.2 is totally based upon the properties of inverse trigonometric function. Till that, Jai Hind.